The expression language in JSP. This is the syntax of expression language. Starts with this sign, this dollar sign, and then this curly braces. So this is the syntax of expression language. So we have covered this topic, implicit objects present in expression language. ये क्या implicit objects present in expression language. See, we have seen implicit object in JSP also. Implicit object in JSP. So implicit object of JSP and implicit object of expression language is different except this page context. क्या implicit object जो JSP में है और implicit object जो expression language में है, दोनों भी different है except this one. कौन सा? पेज कॉन्टेक्स्ट सिमिलर है एक्सप्रेशन लैंग्वेज में भी और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन जेएसपी में भी. सो क्या है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन जेएसपी एंड इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन एक्सप्रेशन लैंग्वेज इज डिफरेंट एक्सेप्ट पेज कॉन्टेक्स्ट, राइट? एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज. सिंटैक्स ये है. नाउ सी, ये सब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है, राइट? पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप, param, param values, header values, cookie, init parameter, page context. Okay. Then now the next thing is, see, now we will see operators which are there in expression language. Operators of expression language. Okay. So operators के expression language के see. See, there are different operators in expression language. So their precedence are as follows. Different expression language के operators यहाँ पे दिए हुए हैं, like addition, subtraction, multiplication, division, less than, equal to, greater than, equal to, then equal, not equal to, logical and operator, logical or, logical not. Okay, logical and, logical or, not logical not. Okay, then unary operator. Different operators are there in expression language. Okay, ये reserve words है, reserve words in expression language. less than, equal to, greater than, equal to, not equal to, true, false, and or not, instance of, division, modulus, empty and null. ये क्या reserve words है in expression language. Now see this one. एक्सप्रेशन लैंग्वेज ऑपरेटर्स, ठीक है, हाउ टू यूज देम. ये क्या है? एक्सप्रेशन लैंग्वेज डॉट ऑपरेटर है. एक्सप्रेशन लैंग्वेज डॉट ऑपरेटर, ठीक है. तो डिफरेंट ऑपरेटर्स है. ये फर्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? डॉट ऑपरेटर, ठीक है. तो एक्सेस ऑपरेटर, एक्सप्रेशन लैंग्वेज प्रॉपर्टी एक्सेस ऑपरेटर, और यू कैन से डॉट ऑपरेटर, डॉट. So this dot operator expression language, EL stands for expression language. A syntax कैसा है उसका? Starts with dollar and curly braces, right? This is the syntax. This dollar sign and curly braces. Let's look at expression language operators and how to use them. So this is dot operator, right? That is defined in expression language. And use of this dot operator is used to get the attribute values. To get the attribute values, dot operator is used to get the attribute values. Okay. So in the above expression, see this line. First object can be expression language implicit object. यहाँ पे क्या आएगा? Implicit object. और attribute in page, request, session और application scope. For example, see first object में क्या आएगा? Which scope you are using? कौन से scope को belong करता है वो पेज? ठीक है, ये syntax है, ये example. Request scope, I have taken request scope. And request scope is implicit object in expression language, right? Page scope, request scope, session scope, application scope. These are different scope present in expression language. Request scope is implicit object in expression language, and
Now the next attribute, second object में I have written employee dot address. Employee dot address. तो क्या इसमें होगा? Employee dot address क्या है तुम्हारा? You can say it is an attribute. क्या? It is an attribute, right? So dot operator, it is used to get the attribute values. It is used to get the attribute values. Now the next operator is access operator. तो उसका ये क्या है तुम्हारा? access operator है, ठीक है? So access operator is more powerful than dot operator. It is more powerful than dot operator. तो उसका यूज क्या है? यूज टू गेट डेटा फ्रॉम लिस्ट एंड एरे टू. अगर डेटा तुमको लिस्ट और एरे से निकालना है तो दिस एक्सेस ऑपरेटर इज यूज. एक्सेस ऑपरेटर, ओके, टू गेट डेटा फ्रॉम लिस्ट एंड एरे. नाउ सी डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है, एक्सेस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एक्सप्रेशन, जेएसपी, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस. मॉड्यूलस मींस रिमाइंडर, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट. लॉजिकल एंड है ये लॉजिकल और है, एंड दिस इज लॉजिकल, लॉजिकल नॉट. रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वल, not equal, then less than, greater than, then greater than equal to, less than equal to, yeah, greater than equal to, less than equal to. Okay, so these are the different relational operators: arithmetic operators, logical operators and relational operators. So see, कौन से operators present है expression language में? कौन से है? डॉट ऑपरेटर, एक्सेस ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है, ये टेबल है. कौन सा टेबल है? जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज ऑपरेटर. जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज ऑपरेटर, ठीक है? एक्सेस ऑपरेटर, देन ये याद रखो, यूनरी, नॉट एम्प्टी. देन ये किस में आता है? अरिथमेटिक में आता है, ठीक है? नाउ सी, कौन से ऑपरेटर्स वी हैव सीन? डॉट ऑपरेटर, एक्सेस ऑपरेटर, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. Now see, there are different important points which are there in expression language, JSP expression language. The starting 5 points we have to see. See, EL expressions, expression language are always starts within कहाँ पे? Always within curly braces. Expression language का जो expressions है, always within curly braces, prefix with this sign, dollar sign and then curly braces. This is the syntax of expression language. This sign and curly braces like this, expression language syntax. And in the braces we are writing the expression. In the braces, curly braces, we are writing the expression. Okay, this is the syntax of expression language. So now see, second point, if you want to disable expression language expressions in JSP, suppose in one in your JSP page you want to disable expression language expression, जो भी एक्सप्रेशन तुमने यूज किए हो एक्सप्रेशन लैंग्वेज के, ठीक है? एक्सप्रेशन लैंग्वेज में जो भी एक्सप्रेशन डिफाइन किए हो, जो भी एक्सप्रेशन डिफाइन हुआ है बाय यूजिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, इफ यू वांट टू डिसेबल इट, तो क्या करना पड़ेगा? डिसेबल करने के लिए ये ऑप्शन प्रेजेंट है जेएसपी पेज डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट में. जेएसपी पेज डायरेक्टिव का एट्रीब्यूट है. कौन सा एट्रीब्यूट? इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज इग्नोर्ड. इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज इग्नोर्ड किसका एट्रीब्यूट है? जेएसपी पेज डायरेक्टिव का है, राइट?
different page directive we have seen, page different directives we have seen, page, include and tag lib, page, include and tag lib. डिफरेंट डायरेक्टिव्स इन JSP कौन से है? पेज डायरेक्टिव, include directive and tag lib directive. So to disable expression language expression in your JSP page, you have to use this attribute, is expression language ignored, and this attribute is present in which directive? पेज डायरेक्टिव. ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है, ये एट्रीब्यूट का वैल्यू जो है, वी हैव टू सेट इट एज ट्रू. ट्रू सेट करेंगे तो मींस जो भी एक्सप्रेशन है वो डिसेबल हो जाएंगे. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, JSP expression language can be used to get attributes, get header, get cookies, get initialization parameter, but we can't set the values. Very important point. एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करके कहीं भी तुमको दिख रहा है, तुम वैल्यू सेट कर सकते हो. ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज के हम लोगों ने वी हैव सीन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, राइट. सब गेट है. इफ यू विल सी दिस टेबल, ये तो स्कोप है, राइट. बाकी सब गेट 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 है कि नहीं? ठीक है, तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज से यू कैन गेट द वैल्यूज बट यू कांट सेट. एक्सप्रेशन लैंग्वेज में क्या कर सकते हो? ओनली यू कैन गेट दी वैल्यूज, नॉट सेट. यहाँ पे भी देखो गेट गेट गेट. ऑब्जर्व दिस टेबल केयरफुली. ये तुमको याद रखना है सबका. एक्सप्रेशन लैंग्वेज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट एंड उसके डिस्क्रिप्शन यू हैव टू रिमेम्बर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्रेशन लैंग्वेज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट and its description. Okay, so now see this. What is the third point here? JSP expression language can be used to get attributes, get header, get cookies, get initialization parameters, etc. But we can't set the values. Okay. पर JSP implicit object जो है हम लोगों ने देखे 9 implicit object, वहां पे set and get दोनों है. सेट भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो. दैट इज द डिफरेंस, राइट. JSP जो 9 implicit objects थे and JSP expression language implicit object. JSP expression language implicit object, there is a difference. दोनों में डिफरेंस है, राइट. यहाँ पे सिर्फ गेट कर सकते हो वैल्यू को, सेट नहीं. वहां पे गेट एंड सेट दोनों है जो 9 implicit object हम लोगों ने देखे. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. Expression language, JSP expression language implicit objects are different from JSP implicit object. दोनों ही different है except this one, page context. page context दोनों में सेम है. this one page context C सेम है. JSP implicit page context object. JSP implicit कौन सा बोल रहा है? जो 9 हम लोगों ने कवर्ड किए, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, सेशन, कॉन्फिग, पेज कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, 9 implicit objects of JSP. तो दिस पेज कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे दिया? ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का implicit object है, राइट. तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज का जो implicit object है पेज कॉन्टेक्स्ट, इट इज सेम एज JSP implicit object used to get the request. क्या करने के लिए यूज होता है? गेट द रिक्वेस्ट, गेट सेशन इंफॉर्मेशन जो भी है. फॉर एग्जाम्पल इट यूज टू गेट HTTP मेथड नेम. तो ये गेट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट, गेट सेशन रेफरेंसेस, दोनों में सेम ही है ये. JSP implicit ऑब्जेक्ट में भी एंड एक्सप्रेशन लैंग्वेज implicit ऑब्जेक्ट में भी दोनों का फंक्शनैलिटी सेम है. Now see the fifth point. JSP expression language page context implicit object is provided to get additional properties from request. request में जो प्रॉपर्टी सेट किए हो, रिस्पॉन्स में प्रॉपर्टी जो सेट की हो उसको तुम गेट करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो. ठीक है, रिटर्न करवा सकते हो. कौन से प्रॉपर्टीज दैट यू हैव सेट इन रिक्वेस्ट implicit ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज जो यूज की हो, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी तुमने implicit ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टीज सेट किए हो उसको गेट करवा सकते हो प्रॉपर्टीज को बाय यूजिंग दिस पेज कॉन्टेक्स्ट implicit ऑब्जेक्ट.
So these 5 points of expression language is very, very important. So implicit objects है JSP में, right? Implicit objects और JSP में जो implicit object है, it is used to get the values, but you can't set. JSP expression language में जो implicit object है, you can get the values, but you can't set, right? And this implicit object, expression language implicit object is different from JSP implicit object, except this one, page context. Page context same है दोनों में. Then we have seen the syntax of expression language, this dollar sign and then curly braces. In the braces, we are writing the expression. Okay, then we have seen expression language operators, dot operator, excess operator, arithmetic operator, logical operator and relational operator. ये क्या है? सब expression language में implicit object भी है, expression language के operators भी है. ठीक है. Now we will see one example of arithmetic, not arithmetic, operators of expression language. See this table. See different operators है, expression language operators कौन से arithmetic है, relational है, logical है, right? Now this is a table of arithmetic operators. Expression language, arithmetic operator. कौन से operators है expression language में? Dot operator, excess operator, arithmetic operator, relational operator, logical operator. ठीक है. तो ये टेबल कौन सा है? दिस टेबल डिस्क्राइब्स सब ऑपरेटर्स में अपने अपने ओन ये है, मतलब सिंबल है, राइट? तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के टेबल है. द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर. एक्सप्रेशन लैंग्वेज अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक्सप्रेशन लैंग्वेज अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स प्रेजेंट है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस मींस रिमाइंडर, and then this negation. Okay, negation. Now see some example is given here. If you want to do the addition, how you will write in expression, how you will write by using expression language. ठीक है, this addition operator इसको expression language में कैसे use करेंगे? तो ये expression language का syntax क्या है? First this sign, dollar sign, and then curly braces. In the curly braces you have to write the expression. So if you want to do the addition, you can simply write the two numbers. Here it is given 100 and this plus addition. Plus means addition, 200. So you will get the result, right? 300. Addition of this number is 300. Now the next one, expression language we are using. See the syntax. See the syntax. कैसा syntax है उसका? It starts with, expression language starts with this dollar sign and then in the curly braces write your expression. So now I want to do the subtraction. So 100 minus 200 is minus 100, right? Then multiplication, 9 express syntax देखो, syntax के अंदर we are writing 9 multiplied by 9. Multiplication operator we have used 81. Then division, 200 divided by 100 is 2.0. Then you can write like this also, div. So div, you can use the keyword also, this division symbol, or you can write div also. Okay, div. 200 divided by 0 is infinity. Then modulus, modulus का ये symbol है ना, 2013 modulus 100 is 13. Okay, remainder is 13. Then you can write mod also in place of this symbol, mod. Then 200 mod 0 is exception. Exception में चला जाएगा, ठीक है, कि कोई remainder नहीं आएगा. 200 mod 0 exception case है ये. Then negation, negation का symbol ये दिख रहा है तुमको, -20.
फिर 20 माइनस माइनस इज इट इज प्लस, तो वी आर गेटिंग 40. ठीक है, तो डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है एंड हाउ टू राइट इट, this is given in this column. Expression language, expression example. लॉजिकल ऑपरेटर्स देखो क्या है, लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल और है, ये लॉजिकल नॉट है. ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट का सिंबल ये है. लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट. ठीक है, नाउ सी एक्सप्रेशन लैंग्वेज में हाउ वी आर यूजिंग ये इन द कर्ली ब्रेसेस वी आर राइटिंग ट्रू एंड फॉल्स. तो लॉजिकल एंड में ट्रू फॉल्स क्या होता है, इट इज फॉल्स ना, इसका टेबल पता होना चाहिए. लॉजिकल एंड में ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स. ठीक है, टेबल यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, इसको ट्रूथ टेबल जो होता है ना, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ट्रूथ टेबल. ठीक है, तो इट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ ट्रूथ टेबल जो उसका है. तो लॉजिकल एंड ये सिंबल है, यू कैन राइट एंड ऑल्सो सिंपली. लॉजिकल और में ये सिंबल है और यू कैन राइट और ऑल्सो. लॉजिकल नॉट है सिंबल है, यू कैन यूज दिस वर्ड ऑल्सो नॉट. तो दो यहाँ पे लाइन दिए हुए, लॉजिकल एंड ही, दोनों लॉजिकल एंड ही है. ठीक है, और उसका जो ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग रिजल्ट है, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट. नॉट तो सबको पता है अपोजिट है, फॉल्स ट्रू, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा. अपोजिट, फॉल्स ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स. ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स इक्वल टू, यू कैन यूज EQ. रिजर्व वर्ड जो है, रिजर्व वर्ड वी हैव सीन लॉजिक इन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, रिजर्व वर्ड इज देयर. तो रिजर्व वर्ड के ही विद द हेल्प ऑफ रिजर्व वर्ड ओनली we can write these words जो equal. In place of equal operator you can write EQ. Not equal to, in place of not equal to symbol you can write any also. Less than के लिए you can write LT. Greater than के लिए GT. Less than equal to के लिए LE. Greater than equal to के लिए GE. ठीक है, because reserve word है ये. So in place of operator symbol you can write the reserve word also. तो जो पहले से रिजर्व वर्ड असाइन है इन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, दिस आर द रिजर्व वर्ड्स. ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. और सिंपली पुट किया हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में 100 एंड दिस इज इक्वलिटी टेस्ट, इक्वलिटी ऑपरेटर, राइट. तो 100 इज इक्वल टू 100, राइट, तो इट विल शो. हाँ, वन मोर थिंग, सी एक्सप्रेशन लैंग्वेज को जो नॉट एक्सप्रेशन लैंग्वेज, रिलेशनल ऑपरेटर रिजल्ट जो है, if you will observe we are getting true or false. तो रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट जो है, इट विल ऑलवेज बी इन ट्रू एंड फॉल्स ओनली, राइट. ये टेबल से देख के पता भी चल रहा है, ट्रू और फॉल्स में ही मिलेगा. उसका जो आउटपुट है, इसका रिजल्ट है, इट विल ऑलवेज बी इन ट्रू एंड फॉल्स ओनली. तो 100 इज इक्वल टू 100, राइट, तो ट्रू. एंड वी कैन यूज दिस रिजर्व वर्ड ऑल्सो, रिजर्व वर्ड. in place of, if you don't want to use the equality symbol you can write EQ. उसका जो रिजर्व वर्ड होगा वो सिंबल का यू कैन राइट EQ. 101 इक्वल टू 102, नो, so it will show false. ठीक है, 100 नॉट इक्वल टू 200, राइट है ना, नॉट इक्वल टू 200 है ट्रू. then 200 नॉट इक्वल टू 200, false. 9 लेस देन 10, yes, true. फिर we have used LT, okay, you can use LT also for less than. 9 less than 8, no, false. Then 10 greater than 9, yes, 10 greater than 9, true. Then we have used greater than की जगह पे GT, GT. 10 greater than 20, no, false आएगा. 100 less than equal to 200, yes, true. ठीक है, then we have used in place of less than equal to you can use this reserve word for this operator. less than equal to के place पे you can use LE also, reserve word जो है. less than equal to 100 less than equal to 100 है ना, 100 लेस देन, 100 लेस देन इक्वल टू, दोनों सिंबल साथ में है, लेस देन इक्वल टू. इट इज नॉट लेस देन 100, 100 इज नॉट लेस देन 100 बट इट इज इक्वल टू 100, राइट. सो इट विल शो ट्रू. देन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, नहीं, 100 ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं 200 के, तो फॉल्स. देन इन प्लेस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू यू कैन यूज GE, ग्रेटर देन इक्वल टू.
तो 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यस इट इज इक्वल टू 100 ना, ग्रेटर देन नहीं पर इक्वल टू तो है, तो ट्रू। रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट है इट विल ऑलवेज बी true and false only, true and false only. So the next lecture what we will do, we will place all the relational operator in one program and then we will run it. Okay, logical, relational, ये conditional operator है, conditional operator. So conditional we don't have to see now, conditional. Okay, let's take this condition operator also. The conditional operator, इसका symbol जो देखो question mark है, and colon must participate in this ternary form. ternary तीन है देखो, A B C, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे कोलन का साइन है, ए बी सी, ठीक है। सी कैसे ही एग्जीक्यूट होता है कंडीशनल ऑपरेटर, इफ ए इवैल्यूएट्स टू ट्रू, इफ ए इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर ट्रू हो गया ए वाला कंडीशन तो बी वाला इवैल्यूएट होगा, ठीक है, ठीक है। देन इवैल्यूएट बी, अगर ए वाला ट्रू हो गया तो बी इवैल्यूएट होगा, ठीक है। अगर ए वाला नहीं ट्रू हुआ तो सी इवैल्यूएट हुआ, समझ रहे हो बात को। इफ ए वैल्यूज टू ट्रू, ट्रू हो गया ए वाला कंडीशन तो कहां पे जाएगा, इट विल जम्प टू बी, इट विल जम्प टू बी इफ ए इज ट्रू। अब ए इज नॉट ट्रू एल्स कहां पे चला जाएगा, वो सी पे। तो ए ट्रू पे तो बी पे, ए ट्रू नहीं है तो सी पे जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन लैंग्वेज में हाउ इट इज रिटर्न। ये देखो ये लाइन, सी दिस लाइन, पहले तो फर्स्ट सी द सिंटैक्स यू हैव टू रिमेंबर, हाँ एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, दिस डॉलर साइन एंड दिस कर्ली ब्रेसेस, सिंटैक्स ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है। यू एक्सप्रेशन लैंग्वेज in the curly braces you can write the expression, you can write the expression. The syntax यही है ना, dollar sign on this curly braces, in the curly braces you can write the expression. So now I'm going to use this conditional operator, this one, this conditional operator, ठीक है। कंडीशन वाला ऑपरेटर, ट्रू फॉल्स कंडीशन वाला ऑपरेटर है, ठीक है। So now see three expression we are taking in this curly braces. 8 plus 9 greater than 10, फर्स्ट एक्सप्रेशन। ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, 8 प्लस करली ब्रेसेस, ये तो सिंटैक्स है, सीरीज प्रॉपरली ये क्या है, ये तो सिंटैक्स है, करली ब्रेसेस स्टार्ट है, करली ब्रेसेस यहाँ पे तुमने एक और करली ब्रेसेस लिए मतलब क्लोज, ठीक है। अभी इन दैट वी आर राइटिंग 8 प्लस 9, ब्रैकेट में 8 प्लस 9 है क्योंकि दो टर्म है ना, 8 प्लस 9, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में आया, ठीक है। फिर देन ग्रेटर देन 10, ये हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ये कंडीशनल ऑपरेटर, दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या लिख रहा है, 11 प्लस 12 कोलन 13 प्लस 14, ठीक है, ब्रैकेट में 11 प्लस 12 एंड 13 प्लस 14 है ब्रैकेट में। देन कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे जो स्टार्ट किए थे यहाँ पे एक और लेना है, क्लोज करने, ठीक है। नाउ सी 8 प्लस कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये 8 प्लस 9 इज 17, 17 greater than 10, is 17 greater than 10, true or false, ट्रू, ट्रू है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कैन यू आंसर दिस। अभी मैं ये हाइड कर रही हूँ, रिजल्ट हाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज शोइंग 7 प्लस 3, सॉरी नॉट 7 प्लस 3, 8 प्लस 9 इज 17, राइट, 17 greater than 10, 17 greater than 10 means true ना, कंडीशन इज ट्रू, ये ए वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, बी पार्ट और सी पार्ट, बी पार्ट, राइट। इफ ए कंडीशन इज ट्रू तो बी वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो बी वाला पार्ट क्या है, 11 प्लस 12, 11 प्लस 12 इज 23, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। इफ ए कंडीशन इज ट्रू बी वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ए वाला ट्रू नहीं है तो कहां पे जाएगा, सी वाले के पास।
समझा? तो यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल ए कंडीशन इज ट्रू, 17 इज ग्रेटर देन 10, तो इट इज ट्रू। तो कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है? बी वाला, नॉट C1। 13+14 का रिजल्ट मिल रहा है हम लोग को? नहीं। क्यों? बिकॉज ए कंडीशन इज ट्रू, ए कंडीशन इज ट्रू है तो बी वाला, बी रिजल्ट वी विल गेट, एल्स सी। मींस ए कंडीशन फॉल्स होगा तो सी वाला। इज इट क्लियर टिल नाउ? एक्सप्रेशन लैंग्वेज के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है, देन एक्सप्रेशन लैंग्वेज में डिफरेंट ऑपरेटर्स है। We have seen arithmetic operator, relational operator, conditional operator, then dot operator, excess operator. Is it clear till now? Yes, ma'am.